वाह। अच्छा जैसे जी चाहिए, सिस्टर। आइए प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless your holy name, Father God. What an awesome and mighty God we serve, Lord. The Alpha and the Omega, the beginning and the end, Lord. There is none like you, Father God. We thank you and we praise you. We worship your holy name, Father God. Yes, Lord. We are so fortunate, Father God, so privileged, Master, to be in your presence right now when the world outside is running behind unnecessary things, Father God, which will not keep them in the right place, Father God. Yes, Master. They are seeking happiness, joy, peace outside of you, which is impossible, Father God. Father, we thank you that we are such fortunate children of yours, Father God. Not because we are worthy, Father, but because you chose us, Father God. Yes, Master, you picked us out from the miry clay. From the billions and billions of people, your eyes fell upon us and you handpicked each one of us, Father God, to be in your kingdom, Master. From the darkness, from the wrath, Father God, you have brought us out and brought us to your marvelous light, Father. We thank you, and we praise you, Lord. We worship you, Lord. We surrender our lives as a pleasing sacrifice to you, Lord. Yes, Master. Let everything that we offer it to you, Lord Jesus. Yes, Father. Remove everything that is not pleasing in your sight, Lord. We thank you for this beautiful time, Lord, where we can together in oneness of spirit, even though we are separated with distance, but you are a God beyond time and space, Father God. We thank you, Master, that you have united us in your spirit. Yes, Lord. Father, as we sit together and we ponder on your word, Master, let your Holy Spirit guide each one of us, Lord. Open the eyes of our hearts, Father God. Let us not reason out anything, but let us listen from our heart and receive it from our heart because your spirit dwells there, Lord. Master, make us more mature in you, Father God, so that the storms of this world will not shake us, Father God. We will stand strong on the rock which we call Jesus Christ, who is in our life. He is the anchor of our soul, Father God. Yes, Master, we thank you, Lord. We praise you, Father God. Father, we also ask of you, those who are not able to join, you will make it possible. You will bless them also, so that in the days to come, they will also be a part of us, Father God. We surrender all of us and all the rest of the time that we are together in your hands, Lord. Lead us in your ways, Father God. Open the deep revelations of your word, Master. Feed us with the holy manna, Father God. We surrender everything. We bind the forces of the enemy and cast it out so that no distraction of any kind will be a disturbance to our learning and meditating on your word, Father God. We bless your name. We give you all honor, glory, and praise because you alone deserve it. In your matchless name, Jesus of Nazareth, we pray. Amen. 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 Very much, Amen. very much for this beautiful prayer. Welcome, Sister Monica, as well, and Zabes. So at this Missed you. same here. At this time, we'll ask Sister Tina to sing for us for the Lord. Yes. आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है
महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, इन पाक मोहब्बत का थापा न सका कोई। सागर है तू उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, इस पाक मोहब्बत का थापा न सका कोई। सागर है तू उल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया तू पाप के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बता देंगे। हे यीशु महान, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। हे यीशु महान, ये गीत सुनाएंगे। Thank you, praise the Lord. Praise God. Praise God. Beautiful song. Thank you very much for this beautiful song. We appreciate. आइए आज जो है हम एक नई किताब जो है वो शुरू करने लगे हैं। वेल मुझे ये कहा गया है, ये एडवाइस दी गई है कि मैं एक नई किताब जो हूँ वो सिखाना शुरू करूँ। तो मैंने जवाब में ये उत्तर दिया कि मैं थियोलॉजियन नहीं हूँ। आई एम अ नर्स, बट आई एम ट्राइंग वट एवर आई कुड। पर मैं कोशिश कर रही हूँ जो कुछ भी मैं खुदा के लिए कर सकूं वो मैं करूं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम उत्पत्ति से जो है वो अपनी पुस्तक को शुरू करें। सो आर यू हैप्पी विद दैट? Very Very happy. happy, sister. Very happy. I think Yes, sister very तारंग ने ही happy. आपको एडवाइस दी होगी। हाँ जी। हमने सिस्टर कैसे तारक पता लगा? और सिस्टर परविंदर, ये दोनों ऐसी पिलर्स हैं हमारी जूम चर्च की कि ये क्या कहते हैं हमारे चर्च को आगे लेकर जाने वाली कैसे Amen. चलना है। Praise God. Praise God. Amen. Praise खुदा God. लेके जाए, हाँ जी, खुदा भी लेके, खुदा ही लेके जाए। चलो खुदा की तरफ से आपको ऐसा ठहराया कि आप मोटिवेट करते रहते हैं और आगे काम चलता जा रहा है। सो खुदा का शुक्र है। एनी हाउ, आज जो है हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत जो है वो पढ़ेंगे। मैं जरा इसको कर दूं शेयर। वेल यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि जब मैंने जेनेसिस उत्पत्ति जो है उसके बारे में सोचा और मैंने उत्पत्ति का अध्याय उसका पहला जब था, सॉरी गिव मी अ मिनट प्लीज।
सो जब मैंने इसका पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक चीज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और मैंने उस चीज को जो है आपके सामने आज ग्रुप में भी डाला, कि मैंने उसका नाम रख दिया सेटन ब्लाइंडेड। शैतान ने कैसे हमारी आंखों को जो है वो अंधा कर रखा है कि हम अपने क्रिएटर को जो है वो जान नहीं पा रहे हैं। सो आइए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहाँ पर जो है वो बड़ा ही खूबसूरत जो है वो वचन है। बाइबल में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। वेल रिसेंटली जो है मुझे जावेज ने एक रील जो थी वो भेजी, और उसने जो है उस रील में जो है वो बताया गया था कि किसी हिंदू भाई ने जो है वो रील बनाई थी, और वहां पे वो ये कह रहे थे कि जो क्राइस्ट है वो ओरिजिनल वर्ड क्रिस्टो से आता है, जिसको संस्कृत में कृष्णा कहते हैं। सो उन्होंने जो है वो यीशु मसीह को कृष्णा कहा, कहकर जो है वहां पे पुकारा है। अब जब जो कोई भी उसे सुनेगा वो सोचेगा कि शायद कृष्णा ही है जो कि यीशु मसीह उसके रूप में जो है इस धरती पर आए। कोई भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकती है। सो मैंने सोचा कि इसी आयत से क्यों ना हम आज का कलाम जो है उसको और बारीकी से देखें। हम यीशु मसीह को क्यों ना इंट्रोड्यूस करें जिसने इस सृष्टि की रचना की है। सो प्रश्न ये उठता है कि यीशु मसीह क्या कृष्णा है, या यीशु मसीह जो है वो क्रिस्ट है, और क्रिस्ट है तो क्रिस्ट का क्या अर्थ है। जब हम यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके पहले 3 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह से लिखा है, आइए मैं सब पढ़ दें। यूहन्ना की अंजील बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3। सो यूहन्ना की अंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत। वचन देहधारी हुआ, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ पर न्यू टेस्टामेंट में हमने ओल्ड टेस्टामेंट उसका पहला जो है वो वचन पढ़ा, और उसमें लिखा था कि परमेश्वर ने इस जगत की जो है वो सृष्टि की है। पर जब हम न्यू टेस्टामेंट में यानी नए नियम में आते हैं तो यूहन्ना के पहले वचन में उसने क्या कहा कि आदि में, वो सेम ही फ्रेज है जो उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में है कि आदि में परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की। उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है कि आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। जब मैं सिखिज्म में, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, पर सिखिज्म में जब मुझे एक शब्द जो है वो सुनने को मिला, शब्दों शब्द हुआ आकाश। सो वो भी ये विश्वास करते हैं कि शब्द था जिसने आकाश और जमीन को जो है वो बनाया है। अब प्रश्न ये उठता है कि दूसरे धर्मों में भी हम देख रहे हैं कि वो लोग विश्वास करते हैं कि शब्द से सारा जगत जो है वो बना है। यहाँ पे यूहन्ना भी जो है वो कह रहा है कि शब्द आदि में था, और वो परमेश्वर के साथ था, और वो ही परमेश्वर था, और उसके जरिए से सारी चीजें जो है वो उत्पन्न हुई हैं। फिर उसके बाद 14वें वचन में वो कुछ इस तरह से कहता है, आइए मैं सा निकाले यूहन्ना उसका पहला और उसका 14वां वचन। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। And the word became flesh and dwelt among us। 14वीं आयत है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत। और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यूहन्ना इन वचनों को लिख रहा है तो यूहन्ना ये कह रहा है कि आदि में क्या था, वचन था, और वही परमेश्वर था। सो यानी वचन जो है वो परमेश्वर था, और वो परमेश्वर क्या हुआ हमारे बीच में, देहधारी हुआ। किसके रूप में, बिगॉटन सन, isn't it?
सो यानी यीशु मसीह के रूप में, यानी एक लौते पुत्र के रूप में जो है वो देहधारी हुआ। आइए कुलसियों उसका 1 और उसकी 16वीं आयत, कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सो यहाँ पर फिर कुलसियों में पौलुस क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी चीजें जो है वो सृजी गई हैं और उसी के लिए सृजी गई हैं। सो इसका मतलब जो सृजनहार है, जो जिसने इस धरती को जो है वो बनाया है, वो वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वो वचन देहधारी हुआ। वो एक लौते पुत्र के मानिंद जो है वो देहधारी हुआ। सो आइए देखिए यूहन्ना उसका 3 उसकी 16वीं आयत, जो कि बहुत ही प्रचलित आयत है पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, जो है ये सबसे फेमस जो है वो वर्स कही जाती है, जिसमें इस तरह से लिखा है। पढ़ दें प्लीज मेरे क्यों? साथ। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमेन। सो यहाँ पर शब्द क्या आया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। एक लौता पुत्र मतलब यानी क्या उसमें से निकला हुआ, या उसकी पत्नी थी और उसने जो है वो हामला हुई और उसके बाद जो है उसने एक बेटे को जन्म दिया। ग्रीक शब्द में जो बिगॉटन है उसका मतलब है मोनोजीन्स, यानी एग्जैक्टली उसमें से निकला हुआ। बिगॉटन मीन्स वन ऑफ हिज काइंड। जैसे मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल भी दी है कि मैंने कभी नहीं देखा कि किसी इंसान ने बंदर को पैदा किया हो या किसी इंसान ने मगरमच्छ को जो है वो पैदा किया हो। हर इंसान एक इंसान का बच्चा जो है वो क्या करता है, पैदा करता है। सो हमारे, क्योंकि हमें जो है वो पैदा करने की शक्ति दी है, एंजल्स को नहीं है, सो इसलिए हम जो है वो पैदा करते हैं पर अपने काइंड का पैदा करते हैं। जब बात आती है परमेश्वर की, तो परमेश्वर जो है वो अपने काइंड में जो है वो दिखा रहा अपने आप को, पर ऐसा नहीं कि वो क्या कर रहा है, पैदा कर रहा है। सो बहुत सारी कलीसियाएं, खास करके हमारे भाई बहन जो यहोवा विटनेस पे विश्वास करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सृष्टि करता नहीं है, यीशु मसीह जो है वो सृष्टि है, यानी वो पिता का बेटा है और पिता ने उसको जो है पहलौठा समझा है और उसे पहला जो हर क्रिएशन में से वो जो है वो पहला है। पर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि उसका पहलौठापन जो है उसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो दिखाता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। इवन मरो में से भी वो पहलौठा है, क्योंकि कोई भी जो है जो जिसने पाप किया है वो अगर मरा है तो वो मर गया, और अगर जिया है तो उसे खुदा ने जो है वो जिलाया है। यहां पर यीशु मसीह मरे हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, पिता ने जब उन्हें जिलाया है तो वो क्या है, उन सभी क्रिएशन में से वो पहले हैं ऐसे जो बिना पाप किए मरे थे और उन्हें क्या कर दिया गया है, जिला दिया गया है। यानी कब्र भी उन्हें जो है वो नहीं रख पाई, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। पर जब यीशु ने पाप ही नहीं किया तो फिर मौत उस पर कैसे लागू हो सकती थी। उसे मारा तो गया, पर वो क्या हुआ, तीसरे दिन जी उठा। सो आइए अब इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी पहली 3 आयतें जो हैं हम पढ़ेंगे। जब पेलौठे की बात आती है, सॉरी या बिगॉटन की बात आती है, तो इसका मतलब वन ऑफ हिज काइंड, यानी खुदा के जैसा जो हो। सो आइए देखिए इब्रानियों 1 और उसकी 1 से 3 क्या कहते परमेश्वर का वचन पुत्र द्वारा। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और बांति बांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को
अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। आमेन। सो यहाँ पर जो है बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पर उसने कहा कि पिता के पुत्र के द्वारा जो है वो क्या हुआ है, इस सारी सृष्टि की रचना हुई है। सो ये चीज तो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कि यीशु मसीह के जरिए से क्रिएशन जो है वो हुई है। पर तीसरे वचन में जब हम ध्यान से देखते हैं इंग्लिश में, तो उसमें लिखा है ही इज द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी। किसकी ग्लोरी? पिता की ग्लोरी। एंड द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर। किसकी नेचर? पिता की नेचर। अपहोल्ड all things by the word of his power. कौन सी power? Word. Okay. When he had made purification of sin, he sat down at the right hand of the majesty on high. So इसका मतलब जीसस जो थे वो प्रभु यीशु मसीह पिता की जो है वो महिमा को दिखा रहे थे। महिमा क्या है? जो वो खा रहे थे, वो पी रहे थे, वो कर रहे थे, उससे क्या है, हम प्रभु यीशु परमेश्वर को जो है वो महिमा देते हैं। सो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज नेचर, जैसा पिता का स्वभाव है वैसा ही यीशु का स्वभाव है। वो वैसे ही उसी पावर के साथ, यानी शब्दों के पावर के साथ जो है वो अपहोल्ड कर रहे हैं सारी चीजें। तो वो प्यूरिफाई करके, सारे काम को करके, अपनी मिनिस्ट्री को करके पिता के जो है वो दाहिने हाथ जो है वो बैठ गए हैं। सो कहने का अर्थ ये है कि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव, ही इज अ ट्रू विटनेस ऑफ his father because he is the one of his kind. वो उसके जैसा है। इसीलिए यूहन्ना उसकी 14 और उसकी 6 आयत में जब फिलिप्पस कह रहा है कि हमें पिता को दिखा, तो यीशु ने उनसे क्या कहा? जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? पिता को जो है वो देखा है। क्योंकि एक ही है जो पिता से आया है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ओके। इसलिए यीशु मसीह जो है वो शब्द, हमें ये देखने को मिलता है कि यीशु मसीह एक क्रिएटर है। ओके। सो आइए देखिए, क्या यीशु मसीह एवरलास्टिंग क्रिएटर है? यशाया 48 वर्स 28, Isaiah chapter 48 verse 28. I don't know what you call it in Hindi. 48 48। ओके। यशाया 48 की 28 आयत पढ़ दे मेरे साथ। यशाया 48 का ना? हाँ जी, 28 वर्स। 28 नहीं है सिस्टर जी इसमें। रियली? 20, मैं वही देख रही थी 48 का 28। 22 तक है सिर्फ। ओके, 22 पढ़ के देखें। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। Okay, let's do it. Don't you know, haven't you heard? The Lord is the everlasting God. He created all the world. He knew he never grows tired or weary. No one understand his thoughts. So यहाँ पर जो है, I'll search and I'll let you know which verse is that. Maybe 40. Let me see, 40. Isaiah 40 verse 28 है। 28. वो 48 दिख रहा है, वो 40 It's 40, 28. 28। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। सो यहाँ पर हम परमेश्वर को देख रहे हैं, तो परमेश्वर क्या है? एवरलास्टिंग है। वो हमेशा तक रहने वाला है। उसी ने दुनिया को जो है वो सिरजा है। वो कभी थकता नहीं, कभी, बाइबल में लिखा, भजन संहिता जब भजन गा रहा है तो वो कह रहा है कभी ऊँगता नहीं, कभी वो सोता नहीं। और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, उसके थॉट्स जो है, हम अंडरस्टैंड भी जो है वो नहीं कर सकते। सो इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह जो पिता का पुत्र है, जो कि पिता एवरलास्टिंग है, और फिर पुत्र जो उसकी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी क्या है?
वो बिल्कुल एवरलास्टिंग है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जीता हूं, मैं मर गया था, पर अब क्या हूं, युगानुयुग तक जीवता हूं। सो इसका मतलब वो एवरलास्टिंग है। जब हमने रेवलेशन 1 चैप्टर पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं। सो दैट शोज कि यीशु मसीह जो है वो एवरलास्टिंग है। पर क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया? बहुत सारे गुरु आए, बहुत सारे महात्मा आए, बहुत सारे भगवान आए, बहुत सारे देवी और देवताएं जो है वो इस धरती पर आए, पर क्या वो बिना पाप के रहे थे या उन्होंने कभी पाप किया था? प्रश्न ये उठती है कि जब हम किसी भी भगवान को खुदावन यीशु मसीह के साथ मिलाते हैं, किसी भी इंसान को यीशु के साथ जब मिलाते हैं, तो उनमें भिन्नता एक चीज से नहीं, बहुत सारी चीजों में जो है वो आती है। सो सबसे पहली भिन्नता उनकी और यीशु मसीह में ये थी कि ही बिकेम सिन, वो हमारे लिए पाप तो बन गया, पर उसने कोई भी पाप नहीं किया था। सो आइए देखिए पहला यूना उसका 3 और उसकी 5 आए। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। सो उसके स्वभाव में क्या था? पाप नहीं था। एक बार एक टीचर ने मुझसे पूछा कि वो जो थे वो हिंदू थे, पर मुझे पढ़ा रहे थे, फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो मुझसे पूछने लगे कि आप क्रिश्चियन क्यों हैं? तो मैंने उनसे कहा क्योंकि यीशु मुझसे प्यार करते हैं इसलिए मैं क्रिश्चियन हूं। तो उन्होंने कहा कि वेल, सभी भगवान प्यार करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये तो बात सही है। हो सकता है आपके भगवान भी आपको प्यार करते हो, पर एक और चीज है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो वो बोले क्या? तो मैंने उनसे कहा कि यू नो व्हाट, अगर मैंने पाप किया और एक जन आके मुझे थप्पड़ मारे और दूसरा जन आके मुझे प्यार करे, तो आप बताएं मैं किसके पास जाऊंगी? या ऐसा ही आपके साथ हो तो आप किसके पास जाएंगे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसके पास जाऊंगा जो मुझे माफ कर दे और मुझे प्यार करे। तो मैंने उनसे कहा कि इसीलिए मैं क्रिश्चियन हूँ, क्योंकि जीसस जो थे वो मेरे लिए पाप बन गए, उन्होंने मेरे पाप उठा लिए और उन्होंने मुझे माफ करके मुझे प्यार किया। तो जब मैंने ऐसे उससे कहा तो वो इस चीज से जो है वो बहुत, आई वाज क्वाइट यंग, और वो सोच में जो है वो पड़ गए और उन्होंने सिर हिलाया, नोट नोट कर रहे थे अपने सिर को इस तरह से, और सोचों में जो थे वो पड़े हुए थे। सो वो दिखता था कि ही एग्रीड कि सचमुच में कि यीशु मसीह जो है उन्होंने हमारे सिन, हमारे पापों को उठा लिया। सिनर्स को नहीं मारा, उन्होंने सिन को मारा, और देह में रहते हुए उन्होंने कोई भी जो है वो पाप नहीं किया। जीसस एक ऐसा नाम है जो सब नामों से उत्तम जो है वो किया गया, सब नामों से जो है उसे ऊपर उठाया गया। और उस नाम का अर्थ ये है, जो हिब्रू नाम है जिसका अर्थ है गॉड इज साल्वेशन, यानी यशुआ मीन्स गॉड इज माय साल्वेशन, यानी खुदा हमारी मुक्ति है और वो ही मुक्ति हमारा खुदा जो है वो बन गया। जब लोग ये कहें कि क्राइस्ट क्या क्या अर्थ है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्राइस्ट का अर्थ ओरिजिनल भाषा में जो है, इब्रानियों में इसे जो है क्रिस्टो करके बोला गया है, जिसका अर्थ क्या है? अनॉइंटेड, वो जो मसा किया हुआ। जैसे मसाया, मसाया का नाम का अर्थ भी क्या है? जो मसा किया हो। सो इसलिए क्रिस्टोस का मतलब ये नहीं है कि कृष्णा, क्रिस्टोस का मतलब है क्राइस्ट, अनॉइंटेड वन। सो दिस इज नॉट व्हाट द कृष्णा मीन्स। जब मैंने कृष्णा के बारे में गूगल किया, मैंने कभी भी हिंदुइज्म के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, पर जब मैंने गूगल किया तो ट्रिनिटी, इनमें भी जो है वो ट्रिनिटी है, और ट्रिनिटी में से एक जो है पर्सन और डायटी जो है वो कृष्णा है। उनके रंग से, क्योंकि संस्कृत वर्ड कृष्णा है जिसका अर्थ है ब्लैक, डार्क, डार्क ब्लू। हिंदू मिथोलॉजी में कृष्णा इज ऑफन डिपिक्टेड विद डार्क और ब्लू स्किन। अगर मैं आपको कहूं कि आप आंखें बंद करें और मुझे ये बताएं कि यीशु कैसे दिखते होंगे, तो आप जो है उसे बयान कर पाएंगे। एम आई राइट और नॉट? पहली चीज तो जी मैं ये देखूंगी
कि यहूदी कौम से यीशु मसीह आए हैं तो वो साफ रंग के ही होंगे। दूसरी चीज मुझे ये दिखती है कि वो बड़े सफाई रखने वाले होंगे, क्योंकि यहूदी कौम पूरी दुनिया में सबसे सफाई रखने वाली कौम है। और फिर आंखें बंद करती हूं तो मैं ये देखती हूं कि वो जरूर जो है अच्छे बिल्ड के भी हो सकते हैं। व्हेन वी क्लोज आइज वी कैन इमेजिन हाउ क्राइस्ट इज। हम आंखें बंद करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि व्हाइट कपड़ों में है, व्हाइट रोब जो है उन्होंने डाली है, क्योंकि हम बाइबल से उसे देख सकते हैं। पर उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में जब मैं कृष्णा के बारे में देख रही हूं तो उसका रंग जो है वो काला या नीला जो है वो बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहा जीसस के साथ। सो इसलिए ये बात जो है वाजिब नहीं है कि कृष्णा जो है वो यीशु हैं। Deity में Krishna is a Hindu god, an incarnation of Vishnu, the second god in the Hindu Trinity. He is the god of love, protection and compassion. But मैं आने वाले अपनी इसमें स्टडी में बताऊंगी कि जीसस क्या है, उनमें क्या कैरेक्टर्स हैं। Then all attractive. The name Krishna can also be interpreted to mean all attractive. So मैं बताऊंगी कि जीसस क्या है थोड़ी देर के बाद। जस्ट मेरे साथ बने रहें। और चार्मिंग इन रेफरेंस टू हिज डिवाइन क्वालिटीज। वेल, बहुत सारी लड़कियां जो थी उन पे मरती थी और वो उनके बीच में रहते थे। So that's a picture I get if I close my eyes and I think about him. River. Krishna is also the name of the river in southern India that flows from the Western Ghats to the Bay of Bengal. So Krishna वो एक नदी है और नदी से जो है वो नाम दिया जाता है। वेल, कृष्णा मीन्स द हाईएस्ट प्लेजर। भगवत गीता में उन्होंने जो इस तरह से कहा, नॉट द अनॉइंटेड बट द हाईएस्ट प्लेजर। वेल, जीसस के जब हम कैरेक्टर्स देखें तो सबसे पहले हमने ये डिस्क्लोज किया कि जीसस इज अ क्रिएटर, क्योंकि उसी से सारी चीजें जो है वो बनी है, चाहे देखी चाहे अनदेखी चीजें हों, सब उसी ने जो है वो बनाया है। फिर उसके बाद गॉड इज इटर्नल। अगर बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर इटर्नल है, आइए मेरे साथ निकालिए यशाया, ओ सॉरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यशाया उसकी 40 उसकी 28, कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना कि परमेश्वर क्या है, सनातन काल का परमेश्वर है जिसने इस सारी धरती को जो है वो रचा है। क्या यीशु मसीह जो है वो इटर्नल है, जैसे मैंने ऑलरेडी वर्सेस जो है आपके सामने दी हैं। उसके बाद परमेश्वर जो है वो बिल्कुल फेयरलेस है। कैसे? क्योंकि लोगों कि भरोसा जो है वो परमेश्वर पर है कि वो उनकी दुविधा में, उनकी परेशानी में, उनके परसिक्यूशन में जो है वो उनके साथ जो है वो खड़ा होगा, उनकी जो है वो मदद करेगा। जैसे हमने दानियल की पुस्तक में देखा, प्रभु यीशु मसीह, शद्रक मेशक अबेदनगो, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने स्टैंड को लिया, यीशु मसीह उनके साथ भट्टी में भी जो है वो दिखाई दिए। जब हम दानियल की देखते हैं, जब वो लॉयंस डेन में गया तो हमने देखा परमेश्वर उनके साथ। परमेश्वर ने उन सियों का जो भूखे थे उनके मुंह जो थे वो बिल्कुल बंद कर दिए और उन्होंने एक भी खरोंच जो है वो दानियल को नहीं दी। अगर हम भजन संहिता उसकी 56 और उसकी 4th वर्स को देखें तो वहां पे लिखा है, इन गॉड आई विल प्रेज हिज वर्ड। ओके, सो खुदा में मैं किसकी तारीफ कर रहा हूं? उसके शब्दों की तारीफ कर रहा हूं। आइए पढ़ दें प्लीज। भजन संहिता 56 वर्स 4। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? Amen. So, जो उस के ऊपर विश्वास कर रहा है वो क्या है? वो भी फेयरलेस है। सो इसका मतलब परमेश्वर जो है वो भी हमारा क्या है? फेयरलेस है। अब वो कह रहे हैं ऑल अट्रैक्टिव, बट यहां पर खुदा के बारे में क्या लिखा है? ऑल वाइज, ऑल नोइंग। अगर मैं एक एक करके आपको कहूं कि ये वर्सेस निकालें, खैर आप जो है स्लाइड्स में देख सकते हैं। कृपया करके एक एक वर्सेस जो है आप खोल के रखें, क्योंकि हम जो है एक एक वर्सेस को जो है वो देखेंगे। यहाँ पे लिखा अय्यूब की किताब में उसके 38 अध्याय में उसकी 3 से 5 उसमें जिक्र आया है
कि परमेश्वर जो है वो ऑल नोइंग है, वो सब कुछ जो है वो जानता है। सो आइए देखिए अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 अध्याय और उसकी 3 से 5 आयत। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? या आगे पढ़ दें। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। आगे पढ़ो। हाँ जी पढ़ दे, बड़ा प्यारा। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर भेंड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम जाएं। आमीन। सो यहाँ पर जो है परमेश्वर अय्यूब से कह रहा है कि जब मैं ये सारी फाउंडेशन रख रहा था तो तू कहाँ था। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना मैजेस्टी है, कितना वाइज है, कि उसकी उसकी हर चीज की जो उसने सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि की फाउंडेशन क्या है, उस पे कैसे धरी हुई है। जब मैं दूसरी मिथोलॉजीज को देखती हूँ तो कई बार वो कहते हैं कि बोल्ड के ऊपर धरती है, कई बार वो ये कहते हैं कि ये धुनी से जो है ये धरती जो है वो बनाई गई है। पर यहाँ पर परमेश्वर उनसे प्रश्न पूछता है कि now prepare yourself like a man. I will ask you, you shall answer me. Where were you when I laid the foundations of the earth? जब कोई था ही नहीं तो कौन बता सकता है कि वो फाउंडेशन किसने जो है कैसे इस फाउंडेशन को जो है रखा है। लहरों को उसने जो है कैसे रोक दिया कि वो अपनी हदों तक जो है वो रह सकते हैं, और वो अपनी हदों से परमेश्वर की आज्ञा के बगैर वो आगे नहीं जा सकते हैं। सो इसका मतलब हम में से तो कोई नहीं था। एम आई राइट और नॉट? जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था तो इंसान तो था नहीं कि इंसान हाँ ये जी। या इंसान जो है ये चीज को दावा करे कि ये धरती जो है वो इस तरह से है। पर एक ही ऐसा विटनेस था जो विटनेस हमें बता सकता है कि ये धरती जो है वो कैसे बनाई गई है, और विटनेस कोई और नहीं, परमेश्वर ही विटनेस है। और परमेश्वर से ही जो है, आसमान से ही जो है वो पुत्र जो है नीचे भेजा गया। जिसने पुत्र को देखा उसने क्या किया? उस परमेश्वर को देखा जिसने सारी सृष्टि की जो है वो रचना की, और उस परमेश्वर के पुत्र ने ये सारी सृष्टि की रचना की है। सो इसीलिए वो ऑल वाइज, ऑल नोइंग है, और वही हमें बताता है कि वही परमेश्वर है। जब हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसने किस तरह से सृष्टि की रचना की, कैसी उसकी फाउंडेशंस थी, क्या क्या उसने बनाया है, और क्यों उसने जो है ये सारी सृष्टि की रचना की है। सो ये एक चीज बताता है कि खुदावंद खुदा जिस पर आप और मैं भरोसा करती हूँ वो कोई भी कल्पना कल्पना जो है वो नहीं है, बल्कि वो क्या है? रियलिटी है। ही इज अ रियल गॉड हु क्रिएटेड दिस अर्थ इन 7 days। तभी आज तक जो है वो 7 दिन हफ्ते में जो है वो पाए जाते हैं। कोई भी ऐसी धर्म पुस्तक इस धरती पर नहीं है जो ये बताती हो कि ये 7 दिन हफ्ते में जो है वो कैसे आए हैं। सो बट हम जब इस पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे, क्योंकि जिसने इस धरती को बनाया है, जिसने इस धरती की हदों को रखा है या समुद्र की हदों को रखा है, फाउंडेशंस रखी हैं, वो खुद अपनी जुबान से हमारे साथ जो है वो बात करेगा। सो आइए पहला सैमुएल उसका 2 और उसकी 3 आयत जो है वो पढ़ दें। फॉर द लॉर्ड इज अ गॉड ऑफ नॉलेज एंड बाय हिम एक्शंस आर वेड। सो यहाँ पर
परमेश्वर की बुद्धिमत्ता के बारे में जो है वो बताया गया है। पढ़ दें प्लीज। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। ओके, सो क्योंकि वो हर चीज जानता है तो वो क्या कर सकता है, ज्ञानी है, तो वो हमारे कामों को तोलता है। आइए भजन संहिता 147 वर्स 5। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। सो यहाँ पर हमारा परमेश्वर जो है ओमनीसेंट है, यानी ऑल वाइज, ऑल नोइंग। और जब हम इन आयतों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इब्रानियों उसकी 4 उसकी 12 में किस तरह से लिखा है कि ही नोज द थॉट्स एंड इंटेंट्स ऑफ द हार्ट। सो प्रभु यीशु मसीह हमारी सोचों को, हमारे इंटेंशंस को जो है, वो जो दिल में हम रखते हैं उनको भी जो है वो जानता है। इज़िकियल 11 उसकी 5 में लिखा है ही नोज द थिंग्स दैट कम इनटू योर माइंड। वो तुम्हारे जहन में जो चीजें आती हैं उनको भी जो है वो जानता है। इक्लेसियास्टिक सबोपदेशक उसका 12 उसकी 14 आयत में लिखा है ही नोज एवरी सीक्रेट थिंग वेदर गुड और इवल। सो जो भी छुपी हुई चीजें हैं उन सबको जो है वो जानता है, चाहे भली की हो चाहे बुराई की हो। सो हम जिस परमेश्वर को जानते हैं, जिस परमेश्वर की हम इबादत कर रहे हैं, वो परमेश्वर एक आम गुरु नहीं है, वो परमेश्वर एक देवी और देवता नहीं है, वो परमेश्वर हर देवी देवताओं के ऊपर जो है वो परमेश्वर है। इब्रानियों 4 उसकी 13 में लिखा है देयर इज नो क्रीचर्स हिडन फ्रॉम हिज साइड। कोई भी ऐसा बनाई हुई चीज उसके आंखों से ओझल नहीं है। ऑल थिंग्स आर नेकेड एंड ओपन टू द आईज ऑफ हिम टू whom we must give account। उसके सामने सब कुछ जो है वो साफ है, सब कुछ जो है वो नंगा है, और हमें उसको अपना अकाउंट जो है वो देना होगा। यीशु मसीह जब मत्ती उसकी 12 उसकी 25 में जब वो अपने लोगों के बीच में था तो वो क्या कह रहा था, जीसस न्यू देयर थॉट्स एंड सेड to them in reply, what are you thinking in your heart? So जब वो सोच ही रहे होते थे तो यीशु मसीह ने भी क्या किया, उनकी सोचों को पकड़ लिया। सो ये पहली चीज नहीं, दूसरी चीज हमें ये बताती है कि वो पहली चीज तो वो क्रिएटर है, तो इसका मतलब पिता और यीशु एक जैसे नेचर है, एक जैसे काइंड है, दोनों खुदा हैं। और दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज हमने देखी कि अगर परमेश्वर हमारी सोचों को जानता है तो यीशु मसीह के पास भी सेम ही जो है वो सामर्थ है कि हमारी सोचों को जानकर उसने जो है उत्तर दिया है। फिर उसके बाद बाइबल में लिखा गॉड इज ओमनीपोटेंट मींस ऑल पावरफुल। प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर पावरफुल हैं। कैसे पावरफुल हैं? भजन संहिता उसकी 33 उसकी 6 और 9 आयत। भजन 33 6 and 9। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। ओके, 9वीं आयत पढ़ दे। क्योंकि सब उसने कहा क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। So understand this word. In the beginning was word. जो word है is equal to his breath और is equal to his commandment. Are you with me? So शब्दों से वो सृष्टि की रचना कर रहा है, अपने श्वास, अपने मुंह के श्वास उसने जो है वो आदम के बीच में फूका और उसकी सृष्टि हो गई। उसने जो है हुक्म दिए और वो हुक्म वहीं के वहीं जो है वो क्या हो गए, खड़े हो गए। सो यानी कुछ भी नहीं बदलता, ना परमेश्वर बदलता है, ना उसके शब्द बदलते हैं, ना उसकी आज्ञा जो है वो बदलती हैं। अब भजन संहिता उसका 8 और उसकी 3 आयत। सभी हैं? यस जी ओके। यस कोई पढ़ नहीं रहा ना, सिर्फ सिस्टर परविंदर पढ़ रहे, तो मैंने सोचा सिस्टर परविंदर ही रह गए, बाकी सब नहीं। 8 का जब 3 मैं ना। आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है
और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। ओके, यहाँ पे ब्यूटीफुल चीज क्या है? यहाँ पे दिखाया गया है उसकी पावर को। उसके शब्दों में पावर है, उसके उंगली में भी जो है वो पावर है, राइट? उसने क्या कहा? व्हेन आई कंसीडर योर हेवंस, द वर्क ऑफ योर फिंगर्स, द मून द स्टार विच यू हैव ऑर्डेन्ड। उसने अपनी उंगली से जो है वो बनाया है। अब एक चीज तो मुझे जरूर पता है कि जब आदम को सिरजा गया था तो आदम को कैसे बना रहा था? अपने हाथों से जो है बना रहा था, क्योंकि उसने गूंदा मतलब मिट्टी को शेप दी, उसमें जो है अपना श्वास जो है वो फूंका। एक और चीज उसने अपने हाथों से की, बाइबल में जो है वो जिक्र आता है कि उसने अपनी उंगलियों से लिखा। वो क्या था? टेन दस टेन कमांडमेंट। कमांडमेंट्स। टेन एग्जैक्टली, कमांडमेंट्स। 10 हुक्म जो है वो भी उसने जो है उंगलियों से जो लिखे। अगर कहीं और भी आप नजर घुमाएं, कुछ और भी उंगलियों में उंगली के साथ लिखा। बेबीलोन के Exactly. देवात के मने वो मने वॉल पे टिकेल, लिखा मैंने या टिकेल अपसुरीन, वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्लेवर क्लास। ओके, कहीं और पे भी उसने अपनी उंगली चलाई। जब वो औरत को उसने माफी दी थी जिसको अडल्ट्री में पकड़ा गया था। प्रेज द लॉर्ड। सो यूहन्ना उसके मिट्टी में 8 लिखा अध्याय था। में, मरियम जब पकड़ी गई तो वो क्या कर रहा है? जमीन पर उंगली से लिख रहा था। और जब उंगली से उसने लिखा तो क्या उसके दोषी वहां रह सके? नहीं, नहीं। बाइबल में लिखा, जी उन्होंने नहीं। झुक कर देखा कि क्या लिख रहा है। जिस जो देखता गया वो पत्थर फेंकता गया और भीड़ से निकलता गया। सो देयर इज अ पावर, ही इज ऑल पावरफुल, सो ही इज ओमनीपोटेंट। फिर उसके बाद आइए देखिए इब्रानियों उसका 1 और उसकी 3 आयत। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। तो वह उसके पापों को 2 मिनट सिस्टर जी। और उसके हाँ जी, सामर्थ के शब्दों से क्या करता है? संभालता है। तो इसका मतलब सूरज अगर अभी तक लटका हुआ है आसमान पर, तो कौन लटका के बैठा है? उसके शब्दों की सामर्थ से। Am I right or not? आमीन। यीशु मसीह यस। ने कहा मतलब जब नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने से पहले वो क्या करने वाला है? जो पुराना आकाश है वो चटाई की तरह क्या हो जाएगा? रोल कर दिया जाएगा, रोल अवे। राइट? बट जब तक वो टिका है तो किसकी सामर्थ्य से टिके हैं? जितने सितारे हैं, चंद्रमा हैं, गैलेक्सीज हैं, जो मर्जी नाम आप ले ले, ये धरती इटसेल्फ, ये किसके? उसके शब्दों से जो है, उसके सामर्थ्य से, उसके शब्दों की सामर्थ्य से जो है वो टिके हुए हैं। क्या यीशु मसीह के पास जमीन और आसमान का अधिकार नहीं है? अगर पिता के पास ये सारी चीजें हैं कि वो ओमनीपोटेंट है, क्या यीशु मसीह ओमनीपोटेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? है। कैसे? उसको अथॉरिटी दी गई है। को अधिकार दिया गया है। ये तो पिता ने आयत मैंने अधिकार सामने दिया है रख पुत्र दिया आपके को। सामने। पर और क्या चीजें, एविडेंसेस हैं जो आपको ये पता लगता है कि वो ऑल पावरफुल? वो उसी में से निकला है, इसलिए जो उसी में से निकला है तो उसके पास वो सारी चीजें होंगी। जो उसके जैसा है यस। उसके पास भी सारी चीजें होंगी। दूसरी बात, क्या अंधों ने आंखें पाई थी? यस। बिल्कुल किसी और ने अंधों को आंखें दी? नहीं। नहीं। क्या लंगड़े जो थे वो चले थे? हाँ जी। बिल्कुल जो एपिलेप्टिक पेशेंट थे क्या चंगे हुए थे? जो अधरंग के मारे थे क्या वो उठ के अपनी खाट उठा के चल दिए थे? जो जी। मर गए थे क्या उन्हें जिलाया गया था? यस। हाँ जी। This is the proof, this is the evidence कि your God and my God is all powerful. बाइबल में आमेन। लिखा, He Amen. provided food as well, sister. Exactly, he provided food as well. Lovely, that's nice. So इसलिए खुदावन यीशु मसीह क्यों भिन्न है दूसरे भगवानों से, क्यों भिन्न है दूसरे गुरुओं से? क्योंकि इसमें ये क्षमता है कि उसके पास क्या है? सामर्थ जो है वो उसके हाथों में है। क्या यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए कोई लड़ाई या फौज खड़ी करनी पड़ी थी? ना। ठीक है,
ठीक है, जो गुरु हुए हैं उन्होंने जो है अपनी कौम को जो है सुरक्षा दी थी, वो लड़े थे, पर लड़के क्या हुए, वो शहीद हो गए। पर यीशु मसीह मतलब शहीद ही बने रहे कि यीशु मसीह जी उठे? जी उठे। आमेन। सो वो यीशु मसीह हैं जो एक ही ऐसा परमेश्वर है जो मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा, जिंदा हो और इसीलिए हम यीशु मसीह की इबादत करते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 139 7 से लेके 12 वर्स तक, जो ये बताता है कि ही इज ऑल प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह पर जो है वो उपस्थित है। आइए देखिए, परमेश्वर के पास ये करेक्टर है, ये फीचर है कि वो हर जगह पे प्रेजेंट हो सकता है। पढ़ते हैं हम भजन संहिता 139 7 to 12। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या मैं तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना आदिलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जहां कहीं भी भजन गाने वाला चले जाए, जहां भी जाके बिस्तरा क्यों ना बिछा ले, या आसमान पर या जमीन या पताल में चला जाए, परमेश्वर वहां पर भी उपस्थित है। क्या यीशु मसीह भी ऐसा ही है? यस। कैसे कह सकते हैं आप? God said, I am the way and the truth and the life. Okay, very good. Anything else? उसकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो वो स्पिरिट में हमारे साथ जहां भी जितने हम लोग हैं सब में है, तो ही इज इनसाइड ऑफ अस। आमेन। बाइबल में लिखा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर उपस्थित हूं। तो इसका मतलब परमेश्वर क्या है? ऑल प्रेजेंट, हमारे साथ हैं। यस। या आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना उसका 14 उसकी 17 से 18 आयत। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ओके, सो यीशु मसीह कैसे आ रहे थे? अपनी आत्मा के जरिए हमारे बीच में आते हैं। सो इसलिए जीसस जो है हर जगह पर प्रेजेंट है। सो इसका मतलब अगर परमेश्वर जो है ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, तो वैसे ही यीशु मसीह भी जो है वो ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। अब एक और विशेषता है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है खुदा का, वो है इम्यूटेबल, यानी वो कभी भी बदलते नहीं है। आइए देखिए गिनती की पुस्तक उसका 23 और उसकी 19 आयत, और एक जन निकाले मलाकी उसका 3 और उसका 6वां वचन। गिनती। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ओके, सो क्या जो कुछ उसने सॉरी, पढ़ते। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? सो यहाँ पर जो है गिनती की पुस्तक में इन द बुक ऑफ नंबर्स, यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है क्या परमेश्वर बदल जाता है? क्या जो उसने कहा है वो उससे मुकर जाएगा? सो वो कभी भी क्या है, बदलता नहीं है। इसीलिए मलाकी उसका 3 उसकी 6 में क्या लिखा है? फॉर आई एम द लॉर्ड, आई डू नॉट चेंज। पढ़ दें हिंदी में प्लीज। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। आमेन। जी। सो यहाँ पर जो है हम परमेश्वर के बीच में एक करैक्टर देख रहे हैं कि परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। इंसान बदल सकता है पर परमेश्वर कभी भी
बदलता नहीं है। क्या यीशु मसीह भी ना बदलने वाले हैं? आइए देखिए इब्रानियों उसका 13 और हाँ उसकी जी, यीशु मसीह भी नहीं बदलते। आमेन आमेन। We can't hear this. इब्रानियों उसकी 13 उसकी 8 इन द बुक ऑफ हिब्रूज। ओह ओके। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। सो प्रभु यीशु मसीह आज कल युगानुयुग क्या है? एक से हैं। सो यीशु मसीह कभी भी बदलते नहीं हैं। अब प्रश्न उठता है कि जैसे जैसे परमेश्वर है वैसे वैसे ही करैक्टर यीशु मसीह में भी जो है पाए जाते हैं। क्या परमेश्वर केयरिंग है? जी है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। यीशु मसीह जो है वो भी केयरिंग है। आइए देखिए परमेश्वर कैसे केयरिंग है। हम यूहन्ना 3 उसकी 16 जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। रोमियो उसकी 5 उसकी 8 में परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे पर इस तरह से नाजिल किया कि जब हम पापी में थे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। सो आइए रोमियो उसका 8 और उसकी 31 और उसकी 32 आयत जो है वो पढ़ दें। रोमियो उसकी 8 और उसकी 31 और उसकी 32 आयत। अतः हम इन बातों में के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? आमेन। सो परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। आमेन। सो यहाँ पर जो है जो शब्द अंडरलाइन मैंने किए हैं वो ये है, हु कैन बी अगेंस्ट अस हु डिड नॉट स्पेयर हिज सन। सो वो क्या दिखाता है कि जिसने अपना बेटा भी नहीं रख छोड़ा अपने लिए, उसको भी हमारे लिए जो है वो दे दिया। तो उसका क्या मतलब बनता है कि वो इतना प्यार और इतना केयरिंग है कि उसको हमारी फिक्र है। और उस प्यार को एग्री कौन कर रहा साथ में? पिता के साथ पुत्र भी जो है उस चीज में एग्री कर रहा है। और पिता ही नहीं चाह रहा कि वो आके मरे, पर पुत्र ने भी जो है चाहा कि वो हमारे लिए, जब हम पाप ही में थे, वो हमारे लिए क्या हो गया? वो हमारे लिए मर गया। सो यीशु मसीह क्या आज भी इसी तरह से हमारे बीच में है? बाइबल में हाँ लिख जी, Amen. So he created all things, he sustains all things, and divine providences concerns God's support, preservation, care, supervision, government. So ये सारी चीजें जो हैं हम प्रभु यीशु मसीह में आज भी देखते हैं। आज भी खुदा जो है हमारा क्या है? प्रोवाइडर है। वो हमें जो है हर चीज देता चला जाता है। पर आइए देखिए, ये तो हम देख रहे थे कि परमेश्वर के जो है वो बड़े बड़े कार्य, कि उसकी कितनी जो है वो ज्यादा क्षमता है। अब उसके स्वभाव में आते हैं। परमेश्वर बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना उसकी 4 उसकी 8 में, कि परमेश्वर प्रेम है। क्या यीशु मसीह प्रेम है? यस। यस, क्योंकि उसके जी क्रूस से हमें जो है उसके प्रेम के बारे में दिखाता है, है या दिखता है कि उसने हमसे प्रेम। प्रेम किया। क्या यीशु मसीह सब्र वाले परमेश्वर हैं? जैसे कि हम पुराने नियम में पिता को सब्र वाला परमेश्वर देखते हैं। आइए देखिए व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6। व्यवस्था विवरण 31 उसका 6वां वचन परमेश्वर की एक और स्वाभाविक जो है उसको बयान करता है। आइए देखें व्यवस्था विवरण 31 वर्स 6। तो हयाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है कभी भी हमें धोखा नहीं देता, कभी भी हमें छोड़ता जो है वो नहीं है। और यहाँ पे लिखा है डोंट मिस्टेक गॉड्स पेशेंस
for his absence. So परमेश्वर का सब्र जो है हमारे साथ बना रहता है। क्या यीशु मसीह में सब्र था? यस यस यीशु मसीह में सब्र है? यस। हाँ जी तो है पहला तिमोथी उसका 1 उसकी 16 में लिखा है। आइए पढ़ दे। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 16। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। यहाँ पे पौलुस अपने आप को सबसे बड़ा पापी कहता है और उसने अपने कॉन्ट्रास्ट में यीशु मसीह का कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया है कि वो सहनशीलता जो है उसके साथ क्या कर रहा है? बनाए रखता है। यानी उसकी मर्सीज को दिखा रहा है, उसके सब्र को जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है। सो इसका मतलब पिता का स्वभाव यीशु के स्वभाव के जैसा है। वेल जो हम सीख रहे हैं इट्स अ पार्ट ऑफ वन पार्ट ऑफ ट्रिनिटी। ओके, सो ट्रिनिटी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। आज हम दो ट्रिनिटी के 2 पर्सन पे जो है वो ध्यान दे रहे हैं कि पिता और पुत्र जो है वो दोनों क्या है? एक है। सो गॉड इज गुड बाइबल में लिखा है। क्या प्रभु यीशु मसीह भले हैं? यूहन्ना उसका 10 उसकी 11 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को एक अच्छा चरवाहा जो है वो बताया है। आइए देखिए यूहन्ना उसका 10 और उसका 11वां वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आमेन। सो यहाँ पर जो है हम देखते हैं पिता भी अच्छा है, यीशु भी जो है वो अच्छा है। अब स्वभाव है कि वो जॉयफुल है। बाइबल में लिखा द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, लॉर्ड इज माय जॉय। सो जॉय का अर्थ क्या है? द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस विच इज नॉट बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टेंसेस। सो हमारे हालातों के साथ हमारी खुशी जो है वो नहीं बनी रहती। सो ये जॉय खुदा की तरफ से आता है। आनंद जिसको कहा गया है, आनंद खुदा की तरफ से है। खुदा जो है हमारा आनंद है। और वो आनंद क्या यीशु मसीह के बीच में हमने पाया था कि नहीं पाया था? यूहन्ना उसका 15 उसकी 11 आयत जो है उसको हम देखेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आनंद की जो है वो बात कर रहा है। सो उसका आनंद कैसा है? कह रहा जैसे दुनिया में तो वो आनंद नहीं मिलेगा पर यीशु मसीह से जो है वो आनंद मिलता है और हमारा आनंद उसमें क्या हो जाता है? पूरा जो है। कंप्लीट पूरा हो। क्या जब यीशु मसीह के शागिर्द स्टीफन को डीकन को ले जब उसको परसिक्यूट कर रहे थे तो क्या उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह का आनंद था? यस जी कैसे दिख यस रहा था। था कि वो के आनंद में था? हाँ जी क्योंकि कैसे? उस पथराव में भी वो उस चीज को सहन कर रहा था और उसका फोकस सिर्फ परमेश्वर पर था। जी, कैसे? हाँ कैसे परमेश्वर पर था? बिकॉज ही सॉ जीसस, द एग्जैक्टली। हेवेंस तो ओपन, ही यहाँ सॉ पर हिम। देखें उसका आनंद उसमें क्या था कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहा था? स्वर्ग खुला हुआ देखा और उसने पिता के दाहिने हाथ में यीशु मसीह को बैठे हुए देखा। सो उसकी खुशी जो है वो इस बात से नहीं थी कि इंसान दुनिया में क्या हो रहा है, और उसकी खुशी उन घरों की तरफ थी। घरों को देखते हुए जो है उसको मिली जो घर स्वर्गीय घरों का जो है वो बात करता है। सो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए जॉय है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो गुडनेस है। और अगर हम ध्यान से देखें ये किनके फल हैं? हु गिव्स द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट? आत्मा Holy के फल। Spirit, पवित्र God. आत्मा के फल। तो अगर हाँ यीशु मसीह पिता गुड है, यीशु मसीह गुड है, आत्मा गुडनेस है, तो क्या नहीं तीनों के कैरेक्टर कैसे हैं? एक समान। सेम है, एक समान है। ओके, सो इसलिए गुडनेस, अपराइट इन हार्ट, करेक्टर, लिविंग इट आउट टू अदर्स। सो वो जो दिल से साफ है, अपने करेक्टर से साफ है और लोगों के लिए जो है वो जीता है। आइए देखिए इफिसियों उसका 5 उसकी 8 से 10 आए। क्योंकि तुम तो
पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ओके, सो बाइबल में लिखा कि पिता में गुडनेस है, यीशु में गुडनेस है, और आत्मा में भी जो है वो क्या है, गुडनेस है। सो इसलिए ये करेक्टर हमें दिखता है कि तीनों में जो है वो सेम है। अब फॉरगिवनेस, क्या पिता फॉरगिव करते हैं? यस यीशु मसीह फॉरगिव करते हैं? बिल्कुल। यस और फिर आत्मा क्या फॉरगिवनेस के बीच में मतलब हमें लेकर आती है कि आता है कि नहीं? आता है। लेके तो आता है। हमें तौबा की नौबत तक लेकर आता है ताकि हम क्या ले सकें, फॉरगिवनेस जो है वो ले सकें। सो आइए इफिसियों उसकी 4 और उसकी 32 आयत जो है वो देखेंगे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो पिता ने यीशु मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के पाप क्षमा करो। सो फिर हम एक दूसरे को कैसे माफ करते हैं? कौन सी आत्मा आती है जिससे हम भी एक दूसरे को क्या करते हैं, माफ करते हैं? प्रभु यीशु मसीह की। एग्जैक्टली। सो पिता माफ पवित्र कर रहा है, यीशु मसीह भी माफ करते हैं, और आत्मा भी जो है हमारे बीच में जब वो ड्वेल करता है, खुदा का आत्मा है, मतलब यीशु मसीह का आत्मा है, यीशु जब हमारे मसीह का बीच में आता है तो वही करेक्टर हमारे बीच में लेकर आता है। सो हम भी एक दूसरे को क्या करते हैं, माफ माफ कर। करते हैं। करते हैं। एग्जैक्टली। आइए, काइंडनेस, क्या परमेश्वर काइंड है? यस हाँ जी क्या यीशु जी मसीह काइंड थे? जी। ये हाँ जी। क्या पवित्र आत्मा काइंडनेस देती है? डेफिनेटली। फ्रूट ऑफ द यस स्पिरिट या ऑफ सो काइंडनेस। हम देख रहे हैं पिता भी वही सब। पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। एग्जैक्टली पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के तीनों के स्वभाव जो है वो कैसे हैं, सेम है, एक बिल्कुल सेम है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इफिसियों उसकी 4 उसकी 32 में, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर, फॉरगिविंग ईच अदर जस्ट एज इन क्राइस्ट गॉड फॉरगेव यू। फिर उसके बाद इसमें एक और शब्द जुड़ा है, कंपैशनेट। काइंड या कंपैशन इज द सेम थिंग, बट कंपैशन जो है वो क्राइस्ट जो है वो कंपैशनेट है, पिता भी जो है वो कंपैशनेट है। क्या क्राइस्ट, गॉड इज अवर सेवियर, इज क्राइस्ट अवर सेवियर? क्या यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता है? यस यस क्या आत्मा हमारी मदद करती है मुक्ति दिलाने में? यस क्या? जी तो इसीलिए पहला तिमोथी उसका पहला उसका 15 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जीसस केम इनटू द वर्ल्ड टू सेव सिनर्स। सो इसलिए यीशु मसीह हमारे क्या हैं, सेवियर हैं। यीशु मसीह लूका उसका 19 उसकी 10 में लिखा, मनुष्य का पुत्र क्या करने के लिए आया? टू सीक एंड टू सेव दैट वाज जिंदगी लॉस्ट। देने और बहुतायत से या जिंदगी देने के लिए और बहुतायत से देने के लिए और आए, बहुतायत से में गुम गए थे उनको ढूंढने के लिए आए। सो यीशु मसीह के मिशन को जो है यहाँ पर दिखाया जाता है। क्या पिता का भी मिशन यही है कि वो हमें उद्धार दे? क्या पवित्र आत्मा का भी यही मिशन है कि वो हमें उद्धार दे? यस। एम आई राइट और नॉट? राइट यस सिस्टर। यस यस एग्जैक्टली। सो यीशु मसीह जो है वो जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह जो है वो जी उठे परमेश्वर है। सो इसका मतलब हर भगवान से, हर गुरुओं से, हर तरह के जो भी विश्वास इंसान पे विश्वास करते हैं, चाहे हम किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उन सब से जो है वो हटकर है, क्योंकि उनके बर्ताव में, उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में जो है वो परमेश्वर तत्व है। और उनके नेचर में जबकि वो इंसान भी बन गए, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने हमारे पाप उठा लिए और कब्र से जो है वो जिंदा उठा लिए गए, जो ये बताता है
कि अगर हम उनके नाम से उनके सामने प्रार्थना करेंगे तो वो जीवित होने के कारण हमारी प्रार्थना को क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनते हैं, लिसन, वो हमारी प्रार्थना का क्या करते हैं? सुनते हैं। जवाब देते हैं। होने की सबसे बड़ी बात यह है कि वो देख सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो हमें सुन सकते सुनते हैं। मैं फिर उसके बाद हैं। एक और विशेष चीज, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं तुम्हारे साथ हमेशा तक हूं, यानी अंत तक हूं। आइए देखिए मत्ती उसका 28 से 20 आए। बहुत स्पष्ट शब्दों में परमेश्वर ने अपना बयान किया है, अपने बारे में बयान किया है, अपनी शख्सियत के बारे में बयान किया है, अपने मिशन के बारे में बयान किया है, और अपने प्रोमिसेस के बारे में जो है वो बयान किया है। आइए देखिए मत्ती उसका 28 और उसके 19 से 20। अदर्स प्लीज म्यूट, क्योंकि आपकी आवाज Okay, एको it's हो रही है सिस्टर। 1 second. It's Pramila. Pramila needs to mute her mic. The other Pramila, because उन दोनों की ऑन है, ऋतु जी की है और इनकी है. So definitely it's somebody. आंटी प्रमिला प्लीज अपना ना म्यूट कर लो इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। ऑलराइट सिस्टर जी पढ़ें जी, प्लीज मत्ती उसका 28 मत्ती उसकी 19। 28। जी। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमेन। यहाँ पर बपतिस्मा किसके नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। 3 है पर ये क्या है? 1 है, क्योंकि उनके करेक्टर्स जो है वो क्या है? बिल्कुल एक है। इसलिए उनकी इमेज और यूनिटी जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उनका हमारे साथ होना कब तक है? 4 साल, 20 साल, 100 साल? बाइबल में लिखा है टिल द Forever. एंड दुनिया के अंत एज। तक। एग्जैक्टली। तो फॉर एवर मतलब टिल द एंड ऑफ द एज। ओके, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यीशु मसीह क्या है? द कमिंग किंग। कोई है ऐसा भगवान, कोई है ऐसा गुरु जिसने ये कहा कि हम दोबारा आते हैं? वही आ सकता है जो मुर्दों में से जिलाया जा सके, वही आ सकता है जो इंसानों में से उठा लिया गया हो, वही आ सकता है जो आसमान की बादशाहत में पिता के दाहिने हाथ बैठा हो, वही आ सकता है जो हमारे को बचाने वाला हो, वही आ सकता है जो अपनी दुल्हन को तैयार देखते हुए उसे लेने के लिए आ सकता हो। आमेन। आमेन आमेन आमेन। तो इसलिए आपको बहुत आमीन, बड़ी आमीन। बधाई हो, मुझे बहुत बड़ी बधाई हो कि हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ अंत तक रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए पाप सारे उठाकर वो हमें शिफा, वो हमें चंगियाइयां, वो हमें फॉरगिवनेस यानी माफी जो है वो प्रदान कर सकता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए इस धरती पर आता है, और हमारे लिए वो इस धरती से गया ताकि हमारे लिए घर तैयार कर सके, और जब वो आए वो हमें भी वहीं लेकर जा सके जहां पर वो रहता है। यूहन्ना उसका 14 उसकी पहली 3 आयतों में इस तरह से बयान किया गया है। और उससे बढ़िया बात, यीशु एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी सल्तनत हमेशा हमेशा तक जो है वो बनी रहती है। बाइबल में जब हमने दानियल की पुस्तक पढ़ी थी तो वहां पर दानियल ने एक ख्वाब का अनुवाद दिया जो नबूकदनेस्सर राजा को आया था। एक मूर्ति जो अलग अलग धातुओं से जो है वो बनी थी, पर एक पत्थर आता है और उस मूर्ति को चूर चूर कर देता है, और वो पत्थर पूरी धरती पर जो है वो फैल जाता है। और वो पत्थर कौन था? पत्थर वो राज्य था जो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सनातन काल तक जो है बना रहने वाला जो है वो राज्य दिखाता है। आइए दानियल उसकी 4 आमीन। और उसकी 3 आयत में उस तरह से लिखा है कि ये नबूकदनेस्सर राजा है जो अंधविश्वासी था, जिसकी टेस्टमनी जो है ये बनी कि उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसने इस तरह से यहाँ पे लिखा है। आइए देखिए दानियल उसकी 4 और उसकी 3 आयत। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े, और उसके चमत्कारों में
क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Amen. So आमीन। एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी हम दंडवत करते हैं, वो परमेश्वर जिसका डोमिनियन जो है वो सदा तक रहने वाला है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक जो है वो बना रहेगा, और उसकी किंगडम, इटर्नल किंगडम जो है वो होगी। वो यीशु मसीह बहुत जल्द आने पर है, और आज आपको बुलाता है, आपको आश्वासन देता है कि जिस पर आपने विश्वास किया है, अपने विश्वास उसी पर जो है वो कायम रखें, परमेश्वर के साथ जो है आप बने रहें, क्योंकि आपका परमेश्वर दूसरे भगवानों से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके पास वो सब गुण हैं जो एक भगवान के पास होने चाहिए। वो एक ऐसा भगवान है, ऐसा परमेश्वर है जो देहधारी हुआ, हमारे बीच में जो है वो आ गया, और वो इस धरती पर फिर दोबारा से आने वाला है। उत्पत्ति की पुस्तक इस सुसमाचार से शुरू होती है कि आप जो उस उत्पत्ति को देखना चाहते हैं, सबसे पहले इस कार्य को देखने से पहले कि उसने क्या बनाया, कैसे बनाया, मैं आपके सामने यीशु मसीह इंट्रोड्यूस करती हूँ, जिसने इस धरती को अपने शब्दों से जो है वो बनाया है। और वो परमेश्वर आपका जीवता परमेश्वर, आपका अनंत काल का परमेश्वर है, जो आपके लिए विनती करता है और एक न्याय भी करता है, और एक दिन आकर आपको अपने साथ जो है वो लेकर जाता है। आइए क्यों ना Hallelujah. Amen. सिरों को झुका दें, हम अब क्यों ना Amen. उसके पांव पे अपने माथे को जो है वो टिका दें और उसका धन्यवाद करें, उसकी इबादत करें, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो ही सनातन का परमेश्वर है। किसी भी भगवान में ऐसी शक्ति नहीं जो उसमें शक्तियां वास करती हैं। वो हर भगवानों का ऊपर परमेश्वर है, वो हर राज्य को बनाने वाला और गिराने वाला परमेश्वर है, और खुदावंद खुदा है। इसलिए जब हम उसके पास आए तो ये जाने कि वो सृष्टि करता है, और हमारे सिर उसका नमन करें, उसकी इबादत करें, उसकी महिमा करें, खुश हों कि हमने उस परमेश्वर को पा लिया है। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, जिन वचनों ने हमारी आंखों को खोला है। और शायद प्रभु जी बहुत सारे लोगों ने इस चीज को प्रभु जी महसूस किया होगा कि परमेश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं वो कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है जो हर चीजों को अपने शब्दों की सामर्थ्य से टिका के रखे बैठा है। और वो खुदावंद है जिसको लाखों लाख फरिश्ते पवित्र 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 हमेशा चौबीसों घंटे करते हैं, जिसके सामने जो 24 बुजुर्ग हैं आसमान में, जो हमने प्रकाशित वाक्य में सीखे थे, वो उसके सामने नमन करते हैं। खुदावंद, हम भी अपना सिर उनके साथ आपके सामने झुकाते हैं, आपको नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने ये वचन अपने कलाम में कलम बंद किए हैं। धन्यवाद हो प्रभु, जितने भाई बहन हमारे बीच में, हमारे बच्चे एकत्रित हैं, इन सबको आशीष दें, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके उनके पतियों को, खुदावन आप सबको आशीष दें। हमारे माँ बाप भाई बहनों को हम याद करते हैं आपके सिंहासन के पास, खुदावन उन पर भी दया करें, उनकी भी नजरें वहां पर टिकें। जो हमारे भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनको भी आपके चरणों में लेकर आते हैं खुदावन, आपकी महानता को वो भी देख सकें, आपको जान सकें, और प्रभु जी नजात पा सकें। आपके वचन में लिखा है, लुक अनटू मी, मुझे देखो, एंड बी सेव्ड, और नजात पाओ। प्रभु जी हम आपको हर रोज देखना चाहते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए कि हम आपके बाइबल के वचनों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। हम सभी को ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 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 Amen. Amen. आमीन। Amen. 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 Thank you, sister. Thank you.